میرا جب بھی کوئی رشتہ آتا تھا تو لڑکے والے انکار کر دیتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے رشتے سے انکار کیوں ہو جاتا ہے، جبکہ میں خوبصورت بھی تھی اور باکردار بھی۔ آخر میرا ایک رشتہ پکا ہو گیا اور عین شادی کے موقع پر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں تو اپنے ہی گھر میں۔ گلی بالکل سنسان پڑی تھی، ہر کوئی تپتی دوپہر کی وجہ سے اپنے گھروں میں آرام کر رہا تھا۔ آج اسے اسکول میں دیر ہو جانے کی وجہ سے اس کے محلے کی بس نکل گئی تھی، اسے 2 بس بدل کے آنا پڑا تھا۔ عظمیٰ نے نظر اٹھا کے آگ اگلتے سورج کو دیکھا اور ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اس نے چلنے کی رفتار اور تیز کر لی۔ گلی کا موڑ مڑتے ہی اس نے سیڑھیوں والی دکان پر نظر ڈالی اور دل میں شکر ادا کرتی ہوئی گزر گئی، ورنہ تو لڑکوں کا ہجوم لگا ہوتا تھا، اونچے اونچے گانے چل رہے ہوتے تھے، وہ آتی جاتی عورتوں کو گھور گھور کے دیکھتے تھے۔ عظمیٰ کو سخت نفرت تھی ایسے لوگوں سے جن کے خود کے گھروں میں ماں بیٹیاں تھیں، پھر بھی وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کو تاڑنے سے باز نہیں آتے تھے۔ عظمیٰ کی نظر سامنے دروازے پر پڑی، اس نے جلدی سے دروازہ پر دستک دی۔ پیاس کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہو گیا تھا، اس نے ایک دفعہ پھر زور سے دستک دی۔ کون ہے؟ آ رہی ہوں، ہاتھوں کو سکون نہیں، پتہ بھی ہے بوڑھی عورت ہوں، دادی نے اونچا اونچا بولنے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ السلام علیکم دادی جان۔ عظمیٰ جلدی سے اندر کی طرف بڑھی اور برآمدے میں پڑے تخت پر لیٹ گئی۔ ہائے ہائے عظمیٰ، میری بچی کیا ہو گیا ہے اور آج اتنی دیر کر دی آنے میں؟ دادی اندر اس کے پاس آ کے بولی۔ کچھ نہیں دادی، بس کام زیادہ تھا، اسکول میں بچوں کے پیپرز ہو رہے ہیں تو سب ٹیچرز لیٹ جا رہی ہیں، میری بس نکل جانے کی وجہ سے مجھے 2 بسیں بدل کے آنا پڑا اور گرمی بھی بہت ہے آج۔ عظمیٰ تخت سے اٹھی اور کچن میں آ گئی۔ کیا چاہیے؟ میں دے دیتی ہوں، تم ادھر پنکھے کے نیچے آ کے بیٹھ جاؤ۔ دادی بھی اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ کچھ نہیں، بس پانی چاہیے، ابھی نہاؤں گی پھر کھانا کھاؤں گی۔ آپ نے کھا لیا کھانا؟ عظمیٰ جلدی جلدی پانی کا دوسرا گلاس پیتے ہوئے بولی۔ ہاں میں نے تو کھا لیا، تمہارا انتظار کرتی رہی ہوں، جب زیادہ بھوک لگی تو کھا لیا۔ کوئی بات نہیں، امی نظر نہیں آ رہی، کہاں گئی ہیں؟ اور آپ اب آرام کریں، میں کھانا خود لے لوں گی۔ بیٹا ماں تمہاری سو رہی ہے، اس کے سر میں درد تھا، اور تمہارا باپ آج دکان سے نہیں آیا، کھانا بھی عثمان لینے آیا تھا۔ اچھا میں نہانے جا رہی ہوں۔ عظمیٰ کچن سے نکل کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا، 7 مرلے کا ان کا گھر تھا جس میں 4 مناسب کمرے، ایک کچن اور چھوٹا سا صحن تھا۔ عظمیٰ ایک طرف بنی الماری میں سے اپنا ہلکے رنگ کا نیلے رنگ کا لون کا سوٹ نکالا اور باہر برآمدے میں بنے باتھ روم میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ ہائے ہائے کلثوم، میں تو کہتی ہوں اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دو، ناشکری کیوں کر رہی ہو؟ ایسے رشتے روز روز نہیں آتے، اتنا بڑا گھر ہے، لڑکی کی 2 گاڑیاں ہیں، خود اپنا کاروبار ہے، اپنی عظمیٰ تو عیش کرے گی۔ خالہ عذرا اپنا برقع ٹھیک کرتے ہوئے بولی، ساتھ ساتھ وہ سامنے پڑے کباب اور بوتل کے ساتھ بھی انصاف کر رہی تھی۔ خالہ ایسے کیسے اپنی بیٹی کو پھینک دوں؟ ٹھیک ہے لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، پر وہ 2 شادیاں پہلے کر چکا ہے، دونوں بیویاں اسے چھوڑ کے چلی گئی، لڑکے میں کوئی مسئلہ ہے تو دونوں چلی گئی، ورنہ وہ کیوں جاتی؟ کل کو خدا نخواستہ عظمیٰ بھی آ گئی، ہم سفید پوش لوگ ہیں، کل کو کس کس کے سوالوں کا جواب دیتے رہیں گے، آپ کوئی مناسب رشتہ لائیں۔ عظمیٰ کی امی کلثوم نے کہا۔ تو کلثوم بہن ایک کو رشتہ ہے، لڑکی کی نوکری ہے، اکلوتا ہے، 2 بہنیں ہیں، شادی شدہ ہیں اور ماں ساتھ رہتی ہیں، کہو تو ادھر بات کروں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ انہیں کل لے آئیں، میں رات کو عظمیٰ اور اس کے ابو سے بات کر لوں گی۔ چلو پھر کل شام کو آ جائیں گے، چائے پر کوئی خاص اہتمام کر لینا۔ خالہ نے کھڑے ہوتے ہوئے آخری گھونٹ بوتل کا بھرا اور باہر آ گئی، اور جاتی ہوئی وہ دادی سے سلام کرنے لگی، لیکن دادی نے اسے ایک نظر دیکھا اور دوبارہ سے تسبیح پڑھنے لگی۔ خالہ عذرا منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد کلثوم اس کے کمرے میں آئی، وہ بیڈ پر بیٹھی کاپیاں چیک کر رہی تھی، کھڑکی کھولنے کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، دن کی نسبت رات ٹھنڈی تھی۔ عظمیٰ بیٹا مجھے ضروری بات کرنی ہے، کلثوم بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی امی آپ کہیں، میں سن رہی ہوں، بس یہ کاپیاں چیک ہو جائے، نیند بہت آ رہی ہے۔ عظمیٰ بالوں کو کیچر لگاتے ہوئے بولی۔ بیٹا وہ کل تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تم جلدی گھر آ جانا۔
फिक्र ना करे, मैं आ जाऊंगी। कोई सामान वगैरह चाहिए तो बता दे, मैं वापसी पर लेती आऊंगी। नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे अब्बू ला देंगे। वो उठते हुए बोली, तुम भी बाहर आ जाओ, बस काम खत्म करके आती हूँ। गर्मी की वजह से वो सब बाहर सहन में बिस्तर लगा के सोते थे। कलसूम बाहर चली गई। उस्मा दोबारा से अपने काम में मशगूल हो गई। आज मौसम सुबह से ही सुहाना था। हल्की हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। उस्मा जब स्कूल से बाहर निकली तो ठंडी हवा से स्कूल के दरख्त और पौधे झूल रहे थे। बारिश की वजह से सब निखर के साफ हो गए थे। उस्मा कुछ देर सामने नजर आते लॉन को देखती रही। ओ फल्ला जी, अब ये बारिश खत्म हो तो बाहर निकलूं, वरना तो सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर बस छूट गई तो खैर है, रिक्शा कर लूंगी। कुछ देर में बारिश रुकी तो वो स्कूल से बाहर निकल के सड़क पर आ गई। आगे चलते हुए वो रिक्शा देख रही थी और पीछे से उसे किसी ने पुकारा, उस्मा जी बात सुने। उस्मान आवाज देता हुआ पीछे भागा। उस्मा ने पीछे मुड़ के देखा, उसके पीछे उस्मान खड़ा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस्मा हैरानगी से उसे देखने लगी। उस्मान रुक के उसे देखने लगा। उसने चादर को अच्छी तरह से अपने गिर्द लपेटा हुआ था। वो बहुत खूबसूरत थी, या उसे लग रही थी। उसकी भूरी आंखों में हैरानगी थी। हवा की वजह से बार बार चादर सर से सरक जाती थी, जिसे वो बार बार ठीक कर रही थी। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, उस्मा ने उसके यूं देखने पर बुलंद आवाज में कहा। मुझे अंकल ने दुकान से भेजा है आपको लेने के लिए। मैं रिक्शा में कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ, उस्मान ने नजरें नीची करते हुए कहा। अच्छा, उस्मान ने पीछे खड़े रिक्शा को देखा और कदम रिक्शा की तरफ बढ़ा दिए। उस्मान रिक्शा में आगे वाली सीट पर बैठ गया। उस्मान ने पीछे बैठ के उसे देखा। वो 2 साल से उसके अब्बा के साथ दुकान पर काम करता था। सुबह के वक्त यूनिवर्सिटी वो एमए कर रहा था। दोपहर को वो दुकान पर आ जाता था। उस्मा ने दोबारा उसे देखा जो रिक्शा वाले से बातें कर रहा था। बढ़ी हुई शेव के साथ वो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उस्मा को नहीं मालूम था कि वो उसकी नजरें कब से महसूस कर रहा था। उस्मा दुपट्टा दुरुस्त करके चाय की ट्रे उठा के अंदर मेहमानों के पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम। उसने अंदर आते ही सबको सलाम किया और चाय की ट्रे मेज पर पड़े बाकी लवाजमात के साथ रख दी। मेहमानों ने उसे सर से पांव तक देखा। उस्मा चुप करके साथ वाले सोफा पर बैठ गई। और बेटा क्या हाल है? मेहमान खातून उससे मुखातिब हुई। मैं ठीक हूँ। उस्मा को कौफ्त हो रही थी सबकी नजरों से। ये तो हर हफ्ते का मामूल था। खाला कोई रिश्ता ले आती, अम्मी तैयार हो जाती, उसे अब तक आदत हो जानी चाहिए थी। ऐसी नजरों का उस्मा का दिल चाह रहा था वो जल्द से जल्द यहाँ से उठ जाए। माशाल्लाह, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, एक मेहमान रोल खाते हुए बोली। आपकी एक ही बेटी है? सुना है स्कूल में पढ़ाती है, महीने का अच्छा कमा लेती होगी। दूसरी खातून घर को देखते हुए बोली। जी जी, बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। माशाल्लाह, उस्मा एमए कर रही है, साथ साथ स्कूल में नौकरी भी। कलसूम ने मुस्कुरा के उस्मा को देखा। हमारी तरफ से बात पक्की समझे, आप भी घर आए। मेरा बेटा अच्छी नौकरी करता है। जी जी, जरूर आएंगे। कलसूम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और उस्मा तो आपकी इकलौती बेटी है, जहेज वगैरह भी तो बहुत देंगे आप। मेरी नंद की इकलौती बेटी की शादी थी, उसने तो घर गाड़ी सब कुछ दिया था। मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह गई थी जहेज देख के। लड़की की बहन बोली। उस्मा उठ के अपने कमरे में आ गई थी। भाई भाई जल्दी करें, उठे, आपकी नौकरी लग गई है, ये देखिए लेटर आ गया है। उस्मान जो रात को देर से सोया था यकदम से उठ बैठा। सामने उसकी बहन रामीन खड़ी थी। क्या छोटी, ये भी कोई तरीका है उठाने का? उस्मान ने उसके हाथ से लेटर लिया और पढ़ने लगा। सब कुछ पढ़ने के बाद उसने लेटर साइड पर रखा। उससे सोमवार से ऑफिस जाना था। अम्मी किधर हैं? उस्मान बाथरूम की तरफ जाते हुए रुका। वो मोहल्ले में गई हैं, अभी आती होंगी। आप नाश्ता करेंगे? हाँ, जो कुछ है ले आओ, मैं फ्रेश हो जाऊं। रामीन बाहर निकल गई। उस्मा की शादी की तारीख रखी जा चुकी थी और उधर उस्मान अपनी नौकरी की वजह से बहुत मसरूफ हो गया था। आज उसे वक्त मिला तो वो दुकान पर आ गया। अरे उस्मान मियाँ, आओ आओ, भाई सुनाओ, तुम्हारी नौकरी कैसी जा रही है? बस अंकल, सब ठीक है। आज वक्त मिला तो आपके पास आ गया। और सुनाएं, कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, बस उस्मा की शादी है तो इसलिए बाप हूँ, परेशानी तो होनी है। उस्मा की शादी कब है? उस्मान ने बड़ी मुश्किल से बात की। उसके लिए ये खबर किसी धचके से कम ना थी। अब तो दिन भी बहुत कम रह गए हैं, इसी महीने को है। मैं कार्ड भेजूंगा, तुम सब जरूर आना। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी, अभी जरूरी काम है। उस्मान से मजीद नहीं सुना जा सका था। वो उठ खड़ा हुआ। बेटा बैठो तो, ठंडा मंगवाया है, वो पी कर जाना।
नहीं अंकल, फिर सही, अभी जल्दी है। वो खुदा हाफिज करके दुकान से बाहर निकल गया। पूरा रास्ता उस्मान उज़्मा के बारे में ही सोचता रहा था। अब अचानक वो किसी और की हो गई थी। क्या अम्मी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये घर मेरे नाम क्यों कर रही हैं? उज़्मा बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान हैं। इतने कम वक्त में कोई दूसरा घर मिलना भी मुश्किल है, कलसूम ने कहा। फिर भी अम्मी, उन्होंने क्यों कहा? अब्बू, आप तो कुछ बोले, उनसे बात करें जाके। उज़्मा का दिमाग दर्द से फटने लगा था। बेटा, बात की है, वो कहते हैं घर भी दे, मुकम्मल जहेज और गाड़ी भी, उनके खानदान वाले, वरना बातें करेंगे। बहू क्या लाई है जहेज में, जबकि सबकी बहुएं लेके आई हैं। अमजद ने इतना कहा और उठ के अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। उसने दादी की तरफ देखा, वो भी खामोश थी। अम्मी, कल को उन्होंने कुछ और मांग लिया तो कहाँ से देंगे हम? आप मना कर दे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? उस्मा, सारे खानदान में कार्ड भेजे जा चुके हैं। लोग क्या सोचेंगे? लड़की में कोई वजह होगी, वरना शादी क्यों टूटी? फिर बैठी रहना आलिया की तरह सारी उम्र बाप के घर, कलसूम ने कहा और रोने लगी। उस आलिया का क्या कसूर अम्मी? कसूर इस मुआशरे में रहने वाले लोगों का है। आते हैं रिश्ता देखने, इंटरव्यू शुरू होता है, खाते हैं और चले जाते हैं। कभी उससे भी किसी ने पूछा है उसके दिल पर क्या गुजरी है? सज संवर के खुद को पेश करना। फिर नहीं जी, आपकी बेटी का रंग नहीं सफेद। अगले हफ्ते फिर यही नुमाइश होगी। हमें उन लोगों ने बोझ बना दिया माँ बाप पर। पहले पढ़े, फिर नौकरी, फिर रिश्तों की नुमाइश लगेगी, फिर ससुराल वालों के सामान का मुतालबा। इन सब में हम किधर हैं? अगर कोई बाप जहेज नहीं दे सकता तो बेटी की जवानी वहीं गुजर जाती है। फिर जब रिश्ता आता है, किसी की बीवी फौत हुई, उसके बच्चों के लिए किसी को दूसरी शादी का शौक, और कोई आपकी उम्र का। क्यों अम्मी, हम कौन हैं जिनको जहेज की वजह से ये सब देखना पड़ता है? उज़्मा, मेरी बच्ची, बस करो, क्या हो गया है? कलसूम ने आगे बढ़ के उसे गले से लगाया। नहीं अम्मी, मुझे बोलने दे, मेरे अंदर घुटन है, मेरा दम घुटने लगा है। पहले रिश्ता ना होना, अब ये मैं थक गई हूँ लोगों की बातों से। मेरे में बर्दाश्त खत्म हो गई है, नफरत होने लगी है मुझे अपने वजूद से। उस्मा, बस करो, कुछ नहीं होगा, तुम हमारी बहुत सब्र वाली और प्यारी बेटी हो, अल्लाह मदद करेगा। उस्मान, जो अमजद साहब से किसी काम के सिलसिले में मिलने आया था, अंदर से आती आवाजों की वजह से वो वहीं रुक गया। सब कुछ सुनने के बाद वो वैसे ही वापसी के लिए मुड़ गया था। देख कलसूम, मान जा, 3 लोग हो, कहीं भी घर किराए पर ले लेना। शादी के दिन नजदीक आ रहे हैं, अगर शादी ना हुई तो लोगों की बातें सुन लोगी। पर अजरा खाला, उन्हें हमारे हालात का पता है। अगर यही सब करना था तो रिश्ता ना करते, शादी के नजदीक आके ये बातें करना और मकान नाम करवाना। और अगर शादी के बाद उन्होंने कुछ और मांग लिया तो हम कहाँ से पूरी करेंगे? देख, अगर मकान नाम नहीं होगा तो बारात नहीं आएगी। अब सोच ले तो मैं चलती हूँ। रुकी खाला, मेरी बात सुनती जाए। उज़्मा कमरे से बाहर आई। मुझे ये शादी नहीं करनी, आप जाके उन्हें ये पैगाम पहुंचा दे। हाय हाय, पागल तो नहीं हो गई है? खाला हैरत से उसे देखने लगी। नहीं खाला, पागल नहीं हूँ। मेरा या मेरे माँ बाप का इतने लालची लोगों के साथ गुजारा नहीं होगा। रोज रोज के रोने और बार बार लोगों में तमाशा लगने से बेहतर है मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूं। और हाँ, एक बात और, अगर रिश्ता हमारी हैसियत के मुताबिक हो तो ले आइएगा। रोज रोज इधर होटल नहीं खुला हुआ, आप खाने के लिए किसी को भी उठा के ले आती हैं। जा रही हूँ मैं, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का। बैठी रहना सारी उम्र के लिए। खाला उठ के बाहर जाने लगी। वो आप लोगों का मसला नहीं, मेरा है, जाएं कोई और घर देखें। कलसूम खामोशी से सोफे पर बैठी थी। उज़्मा करीब आई और बैठ गई। अम्मी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वो लोग बहुत लालची थे और मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है, वो जरूर मेरे लिए कोई राह निकालेगा। उज़्मा मुतमईन हो गई। सबकी रूटीन फिर से वही हो गई। मोहल्ले वाले आते, बातें करके चले जाते। उज़्मा ने दोबारा से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। कलसूम, बात सुन, अमजद ने कहा। वो आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। जी बोले। कलसूम हाथ साफ करती हुई आई। आज उज़्मा को देखने कुछ लोग आ रहे हैं और जानने वाले हैं, तुम बता देना उज़्मा को। नहीं अमजद, उज़्मा नहीं मानेगी। दोबारा से वही सिलसिला। कलसूम परेशान होते हुए बोली, बहुत अच्छे लोग हैं। वो उस्मान है ना, उसकी वालदा और बहन आ रहे हैं। वालिद का तो इंतकाल हो गया है। अच्छा अच्छा, वो तो बहुत प्यारा और मेहनती बच्चा है। कलसूम मुतमईन हो गई। अच्छा, अब मैं आराम करूंगा, थकावट हो रही है। बेटा, वो मान तो जाएंगे ना? उस्मान की माँ ने पूछा। जी जी, उम्मीद तो है, आगे जो अल्लाह की मर्जी। उस्मान ने कहा। उसने सारी बात बता दी थी। चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। वो उठ के बाहर चली गई।
उज़्मा नहा के बाहर निकली। मौसम अच्छा हो रहा था। जाती गर्मियों के दिन थे। सर्दियों की आमद थी। वो चाय बना के कप लेके सहन में लगे सब्जियों वाले हिस्से की तरफ आ गई। उज़्मा, बात सुनो, कलसूम ने पुकारा। जी अम्मी, बोले। वो अपने गीले बालों को पीछे करने लगी जो हवा की वजह से आगे आ रहे थे। बेटा, तुम्हारे अब्बू के जानने वाले हैं, वो आज रिश्ता लेकर आ रहे हैं। कलसूम ने उसे देखा। उज़्मा ने कप एक तरफ रखा। अम्मी, मैंने अभी मना किया था, फिर क्यों आप पूछ रही हैं? वो बहुत इसरार कर रहे थे और रिश्ता भी अच्छा है। उस्मान की वालदा आ रही है। उज़्मा का दिल यकदम धड़का। उसे गर्मियों की वो दोपहर याद आ गई जब वो उसे लेने आया था। ठीक है अम्मी, उज़्मा ने कहा और कप उठा के किचन में आ गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, उस्मान की वालदा ने कहा। उस्मान ने एक नजर उसे देखा और अमजद साहब से बातें करने लगा। रामीन भी अपनी भाभी को देखते हुए खुश हो रही थी। भाई की पसंद का जवाब नहीं। उसने उज़्मा को देखा जो लेमन कलर के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने इस दफा कोई तैयारी नहीं की थी। बहन जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप उस्मान को जानते हैं, काम के साथ उसने नौकरी भी की है। भाई साहब भी जानते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं उज़्मा को अंगूठी पहना दूं। बाकी निकाह हम सादगी से करेंगे। जी जी, उज़्मा अब आपकी बेटी है, जैसा आपको सही लगे, कलसूम ने कहा। जैनब ने अंगूठी उज़्मा को पहना दी। रामी ने सबका मुंह मीठा करवाया। उज़्मा उठ के किचन में आ गई। उसे अपने पीछे कदमों की आवाज आई और वो जानती थी आने वाला कौन होगा। अस्सलाम वालेकुम, उस्मान ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, उज़्मा ने जवाब दिया। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उज़्मा ने अंगूठी उतारी और हाथ की हथेली पर रख दी। उस्मान उसे ही देखने लगा। वसीम, ना ही मेरे वालिदैन मुझे जहेज में गाड़ी दे सकते हैं, ना घर। हमारे हालात आपको मालूम है। कल को शादी के ऐन दिनों में आप गाड़ी की मांग या घर की कर दें तो बेहतर है। मैं अभी से आपसे साफ लफ्जों में बात कर लूं। हाँ, अगर आपको तमीजदार, अच्छी और ईमानदारी वाली बीवी चाहिए तो ठीक है, वरना बीवी नहीं, दौलत तो आप ये अंगूठी उठा के जा सकते हैं। उस्मा ने हाथ पर रखी अंगूठी की तरफ इशारा किया। फैसला अब आपका होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है तो उस्मान उसे देख के मुस्कुराया। उस्मा खामोश हो गई थी। उसके पास लफ्ज खत्म हो गए थे। उस्मान ने अंगूठी उठाई और दोबारा उसी उंगली में पहना दी। अच्छा, तो यहाँ ये सब हो रहा है, रामीन बोलती हुई किचन में आई। उस्मान ने हाथ पीछे कर लिया। कसम से भाई, आपकी पसंद लाजवाब है, इतनी प्यारी भाभी हैं, रामीन ने कहा और उस्मा के गले मिली। उस्मा और उस्मान एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे।